अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्षतः असितो देवलो व्यासा स्वयं जैव ब्रवीष में। Am I audible? Okay. Yes, you are. Hello. Yes, sir. All okay. So friends, we have seen that Arjuna confesses that he had already been taught. By whom? All these Rishi Munis, Vyas, Narad Muni, and he knew all these Vedic passages. But the infinite which was indicated through Vedas was standing before Arjuna was little harder for him to contemplate. If God really appears in his finite form to all of us, I don't think our state will be different, any different from what it was for Arjuna, isn't it? Luckily, we are not blessed. I am saying luckily, because otherwise we can be more confused. As Bhagavan Satsai Baba used to say, that you are taking me for granted in this body form. So when he heard in his own presence the divinity part, he was not ready to accept it. In a way, Lord Krishna wanted him to do so. Arjun always looked at Krishna with his physical eyes. See, when God we are not able to see, we are unable to comprehend through our inner eye. And when, if at all, he appears before us, we will be more perplexed. So, anyway, rather in both the ways, the situation remains the same. Confused as we are, we will always be. Therefore, I always say clarity of thought, whichever direction it may be. Don't force it in one channel. Let it be scattered initially. But once it travels through a specified path, don't allow any deviation to overpower you. Very simple. And just stay relaxed, calm, and quiet. In the midst of all pandemonium, we should be quiet. I was traveling. Unfortunately, all our promises got shackled. God did not want the way we promised. Doesn't matter. We are all joyful, and you are more so. So I am very lucky. But that doesn't mean we will not keep on doing sankalpas. Maybe those days would come. But it did not happen is a fact. So, Sri Krishna Paramatatva, Paramatman,
who was the teacher of Bhagavad Gita, standing before Arjun was very difficult for him to comprehend or to appreciate. And hence, what he did, he surrendered as usual. That was the best part. We do everything except surrender. Karpanya dosho bhatasya bhava. And he told Krishna that I believe all this, that what you're saying to me, and I also believe it to be true. All the devas and danavas, I gave you the meanings of deva and danavas in a different way. They also do not know the real nature of the Lord. Sarvametat dhrutam manne yanmam vadasi keshava. Nahite bhagavan vyaktin vidur devana danava. But there is no despair. Please understand. दानवा दनु के जो पुत्र थे दानव means wrong tendencies, and devas means correct ones. Now correct and wrong again is based on the perception, based on your cherished goal. For all of us, self unfoldment is the goal, and therefore anything deviated from is danava and anything supporting it is deva. Correct. आता याच्यात गफलत होऊ द्यायची नाही. And then we had concluded, I'm purposefully taking up because after a long gap we are beating up. Neither devas nor danavas means just to be good is not enough. I have told you this so many times. So just don't be happy that you are good. You are compassionate. You think good about others. Yes, that is required. But that doesn't mean you will be divine. There will be vasanas troubling you. There will be thought patterns covering you up. So then, if none can know the truth, like devas and danavas, or good thoughts and bad thoughts, then we get a question that why Arjuna is asking Krishna to explain what exactly the special quality that enables him to explain that which none else can even know. जो समझा ही नहीं जा सकता. जैसे आप बचपन में अपन सवाल पूछते हैं, माता पिता बोलते हैं वो अभी नहीं समझेगा, तेरे को बाद में समझेगा. कोई कॉम्प्लेक्स चीज पे अगर बात हो रही है, सपोज घर में, हम लोग सब लोग गुजर चुके हैं स्थिति से, फिर भी हम पूछते रहते हैं. अगर कोई सच्चा अच्छा बच्चा है तो वो क्या बोलेगा, भाई ठीक है बता दिया, हमको अभी नहीं समझेगा. इसका मतलब क्या है? माई इंटेलेक्ट इज रुडिमेंटरी एज ऑफ दिस मोमेंट, isn't it? Please think. There's nothing to despair. I am again repeating. But we have to be very careful. See, Lord is going to tell us that, this supreme can be assimilated. It can be done. आज थोड़ा सा टफ है. जो कि देवों को भी नहीं समझा, दानवों को भी नहीं समझा. अब आप मुझे पूछ सकते हैं, सर ये फिर क्यों करना है, ये समझने की बात नहीं. तो करेक्ट, क्योंकि अगर आपने देखा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसकी हमने बात की थी, ये समझने की चीज ही नहीं है ना. नासमझी दूर कई कि जो बचता है वो ये चीज है. हाँ, मैं फिर से दोहराता हूं, नासमझी दूर करने के बाद जो बचता है वो ये चीज है. इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट.
Only objects can be understood. Only objects can be known. They can be brought under your comprehension. It is the very subject through which and by which all other objects are known. अच्छा अच्छा, तो इसका सर वी गॉट इट, मतलब अच्छे विचार या बुरे विचार, देव और दानव, ये सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आते हैं। एकदम अपन आराम से करेंगे। आप सोचो, एक एक चीज, स्वयमेवात्ममानात्मं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। सो सेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? फिर सेल्फ क्या है? अवेयरनेस। जय कृष्णमूर्ति कहते थे अवेयरनेस इज गॉड। फिर हमारे भगवान ने इसको बोला कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस अपना थोड़ा देर रहता है, फिर से हम माया में चले जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया, अपना क्लास की जितनी गैप थी अभी, उसमें आपको कितने माया की गोली लगी होंगी? बहुत बार। कई बार तो याद भी नहीं रहता कि भगवत गीता में क्या क्या हमने पढ़ा था, और हम फ्लो में चलते रहते। कलाकार देता नहीं युगधारा का साथ, बहती गंगा में नहीं धोता अपने हाथ। हमें कलाकार बनना है। ये बड़ी कलाकारी है बड़ा। मैंने पहले ही कहा आपको, भगवान राम आनंद है, रोने का नाटक कर रहे। हम दुखी जीव है, हमको जीव नहीं है इस भाव में आनंद में रहने का नाटक करते करते एक दिन वैसा ही बनना है। सो सेल्फ बीइंग द अवेयरनेस। आज अपना सेशन एकदम विपरीत होने वाला, एकदम शांत, चिल्ला चपाटा कुछ नहीं, रोना धोना कहानी कुछ नहीं, क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। कभी कभी ड्रामेटाइजेशन से समझने के बजाय हम लोग, वो भी एक प्रकार की माया है, सात्विक माया है ना। इसलिए आज मैंने तय किया था भगवान की प्रेरणा से कि शांति से इस तत्व को समझने की कोशिश करें। कुछ लोग बोलते होंगे सर हमेशा ऐसा ही करो, अपना अपना टेम्परामेंट जैसे रहता है ना वैसा। अब हमारे गुरुजी स्वामी चिन्मयानंद जी, he was a roaring giant. Never did I listen any silent प्रवचन। तो कहीं ना कहीं संस्कार हो जाते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को समझने के लिए हमें आराम से जाना पड़ता है। तो ये अवेयरनेस जो है ना, ये नॉलेज है, नॉलेज। और इस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है? डू यू रिक्वायर एनी लाइट टू सी सनलाइट? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं सर कभी। आई रिपीट, डू यू रिक्वायर, यस यू कैन से लाइट ऑफ योर आई, दैट इज अगेन light. Eyes do not have their own light. It is awareness only, functioning through proper instrument called eye. So a sun doesn't require any other light to get itself illumined. So also this knowledge, self, doesn't require any other outside knowledge.
और इसीलिए कहा गया है कि यू योरसेल्फ नो योरसेल्फ बाय योरसेल्फ. कठीण वाटतं ना खरंच. यू योरसेल्फ नो योरसेल्फ बाय योरसेल्फ. एक फिलॉसॉफी है सांख्य फिलॉसॉफी, जिसमें हमारे अंदर जो ये दिव्यता है, स्पार्क ऑफ लाइफ, जिसको पुरुष कहा गया है, पुरुष. तो पुरुष का मतलब कोई मेल नहीं, हमारा बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है ना समझने के वक्त. तो पुरुष बोलने के बाद में कोई मेल नहीं है. पुरुष तत्व, स्पार्क ऑफ लाइफ, in whose presence all our matter envelopments, we call them prakriti, they become vitalized. देखो दोस्तों, आप है इसलिए इंटरेक्शन है. केवल आप है तो भी इंटरेक्शन नहीं होगी, केवल हम है तो भी इंटरेक्शन नहीं होगी. तो हमारा संवाद वाइटलाइज्ड हो जाता है, डायनामाइज्ड हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है आपके और हमारे चैतन्य शक्ति के संचरण से, विचरण से. सो प्रकृति गेट्स vitalized in the presence of पुरुष. और पुरुषोत्तम कौन है? जिसके आधार पर पुरुष और प्रकृति दोनों फंक्शन करते हैं, वो है पुरुषोत्तम. हमारा मूवी देखना और मूवी का स्क्रीन पे संचालित होना, ये दोनों का साक्षी है स्क्रीन. समझ में आया? तो मान लो हम और वो मूवी के रेज या वो रील, जो भी बोलना है आपको, डांसिंग डॉल्स, वो मानो पुरुष और प्रकृति है, और स्क्रीन जो है वो पुरुषोत्तम है. आई बात समझ में एकदम क्लियर? सो दैट पुरुषोत्तम इज लाइक सेल्फ. तो स्क्रीन को ग्लोरीफाई करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं. पिक्चर नहीं है तो भी स्क्रीन है, और स्क्रीन है तो भी स्क्रीन है. हाँ, पिक्चर चालू होता है तब स्क्रीन नहीं दिखता है. वो वही बात हो गई कि माया है तब भगवान नहीं, और भगवान है तो माया नहीं. लेकिन इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है क्या? बताओ बर, आप बोलो बर, थिएटर में जाके, भाई साहब हम स्क्रीन लेके जा रहे हैं, मूवी खत्म. या स्क्रीन सिर्फ रहेगा और ये रेस बोलेंगे हम जा रहे घर, तो भी मूवी नहीं दिखेगा. दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं, बात इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स है इतने वेदांत के दो चार, कि हमारे लिए जीवन एकदम आसान होना चाहिए. अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, आपको तो बताया, इस बार मुझे मौका भी मिल गया. एक शादी में गया मैं, क्रिश्चियन थे. आपको पता है ड्रेस कॉन्शियस कितने होते हैं, सूट बूट, डबल प्रेस, गुलाब के फूल,
रंगबिरंगी. आणि मी एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी चुरगळलेल्या ड्रेसमध्ये सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला गेलो. मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं था. तो एक दो बार लोगों ने देखा, ऐसे मुझे लगा, और नजरअंदाज कर दिया. देखो मैं क्या चीज बताने वाला हूँ. आपको पता है मेरा एम क्या था? कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे. जितनी विचित्र बात आप करोगे उतने ज्यादा लोग आपके पास इकट्ठा हो सकने की संभावना है. इसका मतलब मुझे उसी दिन फिलोसॉफी आई. मैं गीता के बारे में तो सोच रहा ही था. मैं बोला चला मौका आया है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अगले लेक्चर में बता देंगे. अब वो अनुभव तो नहीं आया, लेकिन इससे मुझे एक समझा, all our experiences move in the field of the known. All our experiences move in the field of the known. Unknown has no power to either enlighten or to darken the existing situation. म्हणजे माहित असलेल्या लोकांमध्ये तुम्ही विचित्रपणा कराल तर तो जास्त ओळखला जाईल. अरे बापरे, सोमण असे आले आज. याचा अर्थ काय? सोमणांना ते पहिले ओळखत होते. So the experiences are and shall be moving always in the field of the known. अब इसको स्ट्रेच कैसे करेंगे? सेल्फ इज अननोन. Because the moment self is known, we are ourselves the self. So how can any experience contaminate the unknown? So we are blemishless, we remain blemishless, we remain joyful. We don't have the colors of experiences. Because self is unknown. And in the realm of the unknown, with the awareness, without any fear or favor, we remain enlightened, and all our experiences of perception do not touch us. How beautiful it is. How beautiful it is. Our botherations are the contaminations of the known. Our fears are the contaminations of the known. लहान मुलाला साप माहित नसेल तर तो सापाच्या जवळून जाईल न घाबरता. असं का? Because he is not contaminated by the known. म्हणून आजारपणाच्या चर्चा करायच्या नाहीत. Google is making us more and more aware of the objective knowledge. So while at one end we are enlightened, sorry to say this great word I am using for a very paltry thing, I will say knowledgeable. I am sorry, not enlightened. At the same time, there are chances of, I have seen many of my friends and relatives getting contaminated by the known from the Google. एक बोलेगा हफ्ते में 3 बियर अच्छी है,
एक बोलेगा बिल्कुल शराब नहीं पीना चाहिए, एक बोलेगा वाइन इज गुड फॉर कार्डियक गुड फंक्शनिंग. We are confounded, we are confused, and then fused. What's happening, friends? Contamination of the known. There is something more called fear of the unknown. मी पहिले सांगितलं आज कठीण आहे पण खूप छान आहे. शांतपणे विचार करायचा आहे. Now fear of the unknown is just like स्विमिंग पूल के पास आप खड़े हैं, तैरना आता नहीं है और कोई वहां अनाउंसमेंट कर रहा है कि 2 मिनट में आपको ढकेला जाएगा पानी में. अब यहाँ दो प्रकार के लोग मिलेंगे. एक बोलेगा यार वैसे भी नहीं पता है, देखा जाएगा, क्या होगा वो होगा. दूसरे को डर लगेगा, कहीं से सुना होगा उसने पानी ठंडा होता है, सांस फूल जाती है, हम डूब सकते हैं, नाक में पानी जा सकता है, वगैरह वगैरह. क्या हो रहा है? कंटॅमिनेशन ऑफ द नोन. तुम्ही लहान मुलाच्या हातात सुतळी बॉम्ब द्या ना, तो तोंडात पण टाकू शकतो, त्याला आग पण लावू शकतो, खाऊ पण शकतो. मित्रों, हमारे जीवन में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. We should not allow ourselves to get contaminated by the known. We should simultaneously be not afraid of the unknown. If we can achieve it, we can say we live in awareness. माझ्या मते आज जे मी शांतपणे पॉइंट्स मांडले, अजून भरपूर लेक्चर आहे, संवाद आहे, वो आपको एकदम समझ में एकदम क्लैरिटी आ गई. क्लैरिटी बहुत जरूरी है. ये गपशप बहुत हो गई अवेयरनेस की वगैरह. So therefore this self does not require any support from any other outside knowledge, because outside knowledge is objective, it is through objects, and no object can illumine the subject because all objects get illumined by the subject. सूर्यप्रकाशामुळे आपल्याला दिसतं, आपल्यामुळे सूर्यप्रकाश नाही. आपण पाहिलं नाही तरी सूर्यप्रकाश आहे. है ना? एकदम क्लियर आइडिया. तो स्क्रीन का एग्जांपल हुआ, सनलाइट का एग्जांपल हो गया. जुगनू की रोशनी सूरज के कारण है, जुगनू के कारण सूरज की रोशनी नहीं है. इतना ही पर्याप्त है इस श्लोक को समझने के लिए. So consciousness in our lives is the key. Without consciousness, there is nothing. Absolutely nothing. And we can do nothing. So, awareness or knowledge of any event or a thing is possible only when
our mental and intellectual disturbances are reduced. विक्षेप मन विक्षेप निर्माण करता है और बुद्धि भ्रम पैदा करती है. एक आवरण है, एक विक्षेप है. दोनों जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये जो सेल्फ अवेयरनेस है वो उससे हम दूर रह जाएंगे. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि. बहुत सुंदर. देन अर्जुन कहते हैं कि विदाउट एनी रिजर्व आप अपने तरफ कुछ रोको, कुछ अपने पास मत रखो भगवान, मेरे सखा, मेरे मित्र, मुझे बता दो अभी आपकी डिवाइन ग्लोरीज, जिसके कारण ये सारी दुनिया उस तत्व से व्याप्त है. ये समझने में मुझे आसानी होगी. कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया. एंड देन ये सब अपना पहले हो चुका है, मैं पूरा रिकैप लिया हूं. तो इन सारी चीजों से मैं जब वाकिफ हो जाऊंगा तो उन्हीं पे मेरा ध्यान लगा रहे. और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि आपकी उपस्थिति वहां मुझे ज्यादा से ज्यादा महसूस हो, उसका मुझे एहसास हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं ध्यान कर पाऊंगा. ठीक है. अब योग और विभूति, ये दोनों की हमने विस्तार से चर्चा की है. भगवान कहना चालू करते हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्यते. भगवान हंतते स्टार्ट्स विद द वर्ड अलास. अरे अरे अरे, you know, there is an elaborate and exhaustive reply of Krishna over here, which indeed is the summary report of this chapter. Krishna will try to explain the exact identity of the self in all individual beings and things around us. So Krishna says, now I will declare to you my divine glories, hantate kathayishyami divyayatma vibhutaya, immanent in their prominence, pradhanyatah kuru shreshta, कि जिसमें जिसमें मेरी प्रमुख था, मैं प्रमुख रूप से उपस्थित हूं. आपण म्हणतो ना विशेषत्वे, विशेष करून. तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ओ बेस्ट ऑफ गुरुज, म्हणजे बघा आपण जिथे आहोत तिथे आपण बेस्ट आहोत. योगा कर्मसु कौशलम. डाउटिंग थॉमस नो चान्स. शंका कुशंका आशंका नो चान्स. फेथ नाही आहे, उगीच काहीतरी आम्ही गीता अटेंड करतो, गीतेला जायचं आहे, नो चान्स. अगर भगवान की विशेष उपस्थिति, उन्हीं के द्वारा जो ये चीजें सारी मैनिफेस्ट हुई है, उसमें हमें देखना है, तो हमारी पात्रता भी, तो यहां पात्र शुद्धि की बात हो रही है. बेस्ट ऑफ द कुरुज का मतलब हम जहां भी है वहां हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हर जगह होना चाहिए. इफ आई एम एन एकेडमिशियन,
I must excel there. If I'm an industrialist, I should be exemplary. If I'm a socialist, I have to be. और मैं आपको विशेष रूप से, this is a very general statement, aham atma gudakesha sarvabhuta shayasthita. A real master of research who is trained, well to be a scientific thinker, he always starts his discussion, if you remember, upon his pet subject of study. If you are a physicist, you will give examples of physics. If you are a chemist, you will give an example. If you are a geologist, you will give examples. And you should be true scientists in your respective field. Then only it is possible. So you try to see Paramatma according to your branch of study. Isn't it, friends? And later on, he will work, at the warp and woof, as they call it, of his description and the logical sequence which he can follow. But his God initially exists in his field of research, his mainstay in the outer world. म्हणून चांभाराला फक्त खेटर दिसतात, नाव्याला फक्त केस दिसतात, शिंप्याला फक्त कपडे दिसतात. फॅक्ट आहे ही. तुम्ही कुठल्याही नाव्याच्या चांभाराच्या जवळून जा, झाडाखाली बसलेल्या, त्याला तुमच्या चेहऱ्यात काही इंटरेस्ट नाही, किती तुम्ही मेकअप केला असेल तरी तो चपला बघेल तुमच्या. उसी प्रकार से अगर हमें ये आदत लग गई, हम आत्मा गुड़ाकेश, की आय एक्झिस्ट इन ऑल बीइंग्स, तर आपण प्रत्येकाच्यात परमेश्वर पाहिजे आपल्याला सवय लागेल. किती सिंपल आहे. याचे अर्थ असे घ्यायचे बरं. यू हॅव टू टेक मिनिंग्स like this. You don't just read and translate it. It gives a very different taste and color, The meaning lies over here. So in the first half of this stanza, it is declared that Krishna as the self in all. Krishna as the self in all. And he is the essence of all multiplicity. Ekoham Shivoham. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Same idea is expressed over here. I am the beginning, the middle, and also the end of the beings. So, this world is a projection of our mind. आपण जेव्हा आजारी असतो तेव्हा आपल्या तोंडाबरोबरच, जिभेच्या चवीबरोबरच आपल्याला सगळं जगच कडू लागतं की नाही सांगा. आपण म्हणतो काही नको वाटतं, पण आजारातून बरं झाल्यावर सगळंच हवं वाटतं. विचार करा. आय एम गोइंग टू टेल ए वंडरफुल ट्रूथ. So when we are sick, it's a lesson for us to behave when we are not sick, as to how we should behave when we are otherwise or not sick. So if at all we are in Vishaya Vasanas, and if we are aware of the things and beings around us, it should give us an experience. It should give us knowledge to remain in that stage when we are otherwise. किती सिंपल आहे. म्हणून देवळात संसाराला आठवायचं नाही, देवळात देवच आठवायचा. हे तत्वच त्याच्यासाठी निर्माण केलेलं आहे. कारण ही माया महाठगणी. म्हणून
प्रेमपूर्वक हा विचार करा. और ये आइडिया सब्जेक्टिवली हमारे लिए, मैंने पहले ही कहा, बाय योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ हे ग्रहण करायचं. इतकं साधं सरळ तत्व आहे. आपल्याला कठीण एवढ्यासाठी जातं की आपण कृष्णाला सांसारिक दूत खेळताना बाहर उभं करतो. पहले बताया मैंने अप्रैल में, कम से कम दूत खेलना है तो उसके प्रेझेन्स में खेलो. की नाही बा, नाही राहू शकत दूत खेळल्याशिवाय. दूतचा अर्थ सांसारिक गोष्टी, आपल्याला जी आवड आहे संसाराची. So every thought, friends, rises from the consciousness, and when it dies away, it merges back to live nothing but consciousness. यह अर्थ है आदि मध्य और अंत का. पहले समुद्र है, वहीं से वेव उछली, थोड़ा देर डांस किया और फिर समंदर में फिर से मर्ज हो गया. अब आप बोलोगे सर ये सब हमको पता है, आप बोल के दिखाओ सिर्फ. फिर उसके बाद आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में नाराज रहने का हक नहीं है. नाराज रहने का हक तभी तक है जहां तक हमको ये समझा नहीं है कि ये समंदर से उछली हुई वेव है, समंदर से अलग न होते हुए उसके साथ ही खेल कूद कर रही है, और थोड़े देर बाद उसी में शांत होने वाली है. अगर इस भाव के साथ हम रहे तो भगवत गीता not only grants but disallows you to be miserable, because in the awareness of these thought currents only bliss remains, nothing else, only bliss, that's all. And hence it's an extremely important thing which we should all remember, that aham atma gudakesh sarvabhutashaya sthitah aham adishya madhyam cha bhutanam antayeva cha. And you must have seen Lord Krishna is not tired of repeating the same idea, because this is the only idea which sustains. This is the only idea which sustains. अब सिर्फ थोड़ी झलक दिखाता हूं आगे की और फिर विश्राम लेंगे. अब वो स्पेसिफिक ग्लोरीफाई, उनकी ग्लोरीज कहाँ कहाँ विशेष रूप से है, तो हमें अपना अंडरकरंट समझ में आया. अब वेव्स की बात होगी. आपण म्हणतो ना ती लाट किती मोठी आली, किती फेसाळ आली, किती छान लाट होती, किती तडाखेदार होती, किती स्पीडने आली वगैरे वगैरे. आपण लाटेचं वर्णन करतो की नाही समुद्रावर, समंदर के साथ. लेकिन है तो वो ओशन ही, लेकिन विशेष रूप से प्रकट हो रहा है. उसी प्रकार से अभी विशेषता क्या क्या है. आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् आदित्यानाम् अहं विष्णु of the Adityas I am Vishnu. Now friends, in Vedic tradition Adityas, they are described in some places as 5, in some places as 6. They are children born out of Aditi. बाद में ट्रेडिशनल बिलीफ ये हो गया कि 12 आदित्य है. Now each represents 1 month. You know this. विष्णु पुराण अगर आपने पढ़े होंगे तो विष्णु पुराण में ये सब है. मुझे बहुत साल हो गए, ज्यादा मुझे याद नहीं है, 30-40 साल हो गए, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. विष्णु पुराण में इसका काफी जिक्र है. तो विष्णु ये भी 12 आदित्यों में से एक है. और सबसे इंपॉर्टेंट आदित्य कोई है तो विष्णु है. देखो उसकी लिंक यहां लगी, इसलिए आदित्यानाम अहम विष्णु. अब ज्योतिषाम रविरंशुमान, of the luminaries, I am the radiant sun. दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स. मेरा एक स्टूडेंट है आईआईटी रुड़की में, उनके साथ हमारी चर्चा हो रही थी. तो he was telling me, a very spiritual child, modern physics admits that sun is the source of all energy. आध्यात्मिक नाही म्हणतोय मी, सायन्सने ऍडमिट केलाय आणि मॉडर्न फिजिक्स थी. सो ऑब्वियसली देखो, अब गीता, हमें साइंस के थ्रू गीता पढ़नी है कि गीता के द्वारा साइंस समझना है. लेकिन ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, बोलो जो भी है. सो नेचुरली यहां जो फ्रेज आई है कि ज्योतिषाम रविरंशुमान, it is quite self-explanatory. In short, friends, the self is the source of all energy. म्हणून आपण म्हणतो ना, अपना झोपड़ा खाली मत करो. बाहर के झोपड़े में अंधेरा कभी कभी आ जाता है, कभी कभी छा जाता है. फिर से बोल रहा हूं, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी छा जाता है. लेकिन if you remain enlightened, if our self remains enlightened, फिर क्या होता है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि. हम जहां जहां जाते हैं प्रकाश लेके जाते हैं हमारे साथ, और सारी चीजें उस प्रकाश में उजागर होती है. मेरे ख्याल से दोस्तों, हमारे अंदर के लाइट की जो बात भगवान ने पहले की है, अब वही लाइट बाहर कहां कहां विद्यमान है, इसकी चर्चा हो रही है. बड़ा आनंद आएगा इस चर्चा में. हम बड़े संक्षिप्त में देखने वाले, लेकिन जब भी ये सारी विभूति हम लोग देखेंगे, तब हमें दुनिया में
जब हमारा विचरण हो रहा है उस वक्त हमें काम में आएगा, क्योंकि तब भगवान का दर्शन हमें ज्यादा मात्रा में होते रहेगा। और हमारी जो दृढ़ता है, हमने जिस ईश्वर के बारे में जाना है, जिस सेल्फ को अनफोल्ड किया है, जिस नॉन इसेंशियल सेल्फ को हमारे प्रकृति से भगाया है, वो लाइट ज्यादा से ज्यादा हमारे में प्रकाशित होते रहेगा। और हमारा आनंद जो है, जिसके तरफ मैं बार बार इंगित करता हूँ, अंगुली निर्देश करता हूँ, उस आनंद का अहोभाव बाहरी जगत में प्रकट होते जाएगा, चाहे परिस्थिति हमारी अनुकूल रहे या हमारे लिए प्रतिकूल रहे। इन्हीं विचारों के साथ आज बड़े शांत विचार से आप, दोस्तों मेरा भी स्वभाव नहीं है ये, मुझे आज खुद को अटपटा लग रहा है, लेकिन मैंने आज संकल्प पूर्ण भगवान से ये तय किया था कि हम शांति से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर बाकी वक्त तो ठीक है, क्योंकि ये ना हमने इतना अच्छा इसका बैकग्राउंड पूरा भगवान की कृपा द्वारा तैयार किया है कि अब ये उदाहरण जो है ये हमारे लिए जल्दी जल्दी समझ में आनी चाहिए। तो इन्हीं कुछ भगवान की विशेषताओं के साथ बहुत ही जल्दी, मैं भी तारीख डेट नहीं बताता हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया बाद में मुझे समझा मेरे जीवन में ऐसा होता है, बहुत कुछ संकल्प करके रखा तो कुछ तो भी उल्टा ही होता है। संकल्प अंदर रखेंगे, छोटे से समय में जब आप इतनी सहायता करते हो, छोटे से नोटिस पे आप सब लोग उपस्थित हो जाते हो, तो वही कृपा आप बरकरार रखिए। और जो पिछले हफ्ते नहीं हो पाया, इंशाल्लाह अगर इस हफ्ते या बहुत जल्दी हो गया, तो मेरी ये मनीषा है, अभिलाषा है, ईश्वर की अभिलाषा के साथ, कि 10वें अध्याय को हम ये यज्ञ जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि इसमें जो बोलना था, जो मेन कहना था, वो हमने विस्तार से सविस्तर रूप से पहले देखा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि ओम।